So understanding right heart catheterization. So main outcome is to interpret right heart path findings. Okay. And objectives are what are the life lessons which I have learned in uh, practicing invasive cardiology, और उसके बाद हम बेसिक्स ऑफ राइट हार्ट कैथ को डिस्कस करेंगे जिसमें दो के हैं hemodynamic data and anatomical data. I will not touch upon anatomical data in this session, but we will briefly touch upon the hemodynamics data, which includes saturation data and pressure data in right heart catheterization. एंड मेरी ज्यादातर प्रेजेंटेशन केस सिनेरियो बेस्ड है, उसमें हम बहुत सारे सिनेरियोज डिस्कस करेंगे जिसमें प्रेशर और सेचुरेशन डेटा होगा और आप उन डेटा की इंटरप्रिटेशन भी। ये सबसे पहले लाइफ लेसन्स ऑफ इन्वेजिव कार्डियोलॉजी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं? बिकमिंग अ सुपरस्टार टेक्स अबाउट 10,000 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। 10,000 आवर्स का क्या मतलब होता है? कितने इयर्स? एनीवन? वली जैद? फिर भी अप्रोक्सीमेटली अगर तुम 5 घंटे काम करो है। और ये 2 हफ्ते ना काम। So 10,000 hours to master your craft. 8 hours a day, 5 days a week हो, 44 weeks a year हो तो 5.5 years। और हम इसका एवरेज जो काम करते हैं वो कितना होता है? हाफ होता है। तो इसका मतलब है एटलीस्ट 10 to 12 years तो अपने स्किल्स को मास्टर करने में। सो यू नीड टू स्पेंड टाइम। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये कर रहे होते हैं, आई कुड हैव बीन अ मास्टर 10,000 hours ago, but I chose to watch TV. ठीक है। So, uh, thoughts on building a successful career in congenital heart disease, especially in invasive cardiology. Remember, it's not just grammar. The difference between knowing your shit and knowing you are shit. Okay. So you need to master your skill really well in order to succeed in this field. So building a successful career can be challenging. Are there specific behaviors or conceptual frameworks that should become part of our fabric to become successful? है या नहीं है कोई? महमूद, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सो वो क्या 5 A's हैं which are well known in medical literature to be successful? These are availability, affability. What is affability? Responsible and easy to talk to. Then ability, then affordability, and then accountability. तो ये सारे गुण होने चाहिए आप में to become a successful person in a field which is very multidisciplinary. ठीक है। सो लाइफ लेसन्स जो मैंने लर्न किए, क्या लाइफ लेसन्स थे? टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ मास्टर्स। ठीक है। कीप योर पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट पैरामाउंट एंड बी थॉटफुल ऑलवेज। इफ यू वुड नॉट डू इट टू योर चाइल्ड, डोंट डू इट टू योर पेशेंट। जो आप अपने बच्चे के लिए ना चाहें वो अपने पेशेंट के लिए भी ना करें। ठीक है। एंड थिंक फिजियोलॉजिकली देन एनाटॉमिकली। ठीक है। एनाटमी तो आपके सामने है, लेकिन अगर वो फिजियोलॉजिकली पॉसिबल है या नहीं है, ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। The easiest thing for interventionalist is to say it can't or should not be done. ठीक है, आप करें ही ना वो काम। And surgeons would rather wait until child larger for a primary repair. Surgeons हमेशा ये आंसर करते हैं कि let him or her to grow और उसके बाद attempt करते हैं। ठीक है। And many a times the kid may not be or lesion may not be repairable if the time passes। ठीक है। Surgical alternatives have their own set of significant risks, and transferring those risks to surgeons does not guarantee risk reduction. So जब indicated हो, you have to do what is best for the child. ठीक है। And always remember, the disease and its natural or unnatural history should always be worse than the treatment. ट्रीटमेंट ऑफर करने से पहले सोच लें कि ट्रीटमेंट के रिस्क ज्यादा तो नहीं है। Think before you act, then think again.
In cath lab, like as in forest fires, big problems always start small. So anticipate small problems and risk mitigate. ठीक है. Have a plan B. Always have a plan B before you start any procedure. ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा. ठीक है. And learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all those mistakes yourself. ठीक है. To read more and see what other people are doing. ठीक है. And it is much easier to stay out of trouble than get out of trouble. Okay? And analyze facts before making a decision. Respect your co-workers, especially in this field, invasive cardiology, and build bridges. This is a team sport. ठीक है. And for an operator and early career learner, don't overestimate your skills. ठीक है. Early in career or training, be overcautious always. Ask more experienced partners for their input. On tough cases, have someone scrub in with you, even though you don't need it many a times. Meet the family, of course, patient's family, before the case, not after the adverse event. True? सही कह रहा हूँ. Ask questions always. Don't forget, the focus is on the child and not on the procedure. For trainees, only one chance to make a first impression, and it takes 1,000 cases to make a good impression, and only one to ruin it. आप लोगों ने कैथ लैब में कभी कभी ये सुना होगा कहते हुए, द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ग्रेट इज करेज, बट नो द डिफरेंस बिटवीन करेज एंड स्टूपिडिटी. Keep calm and practice 10,000 hours. So you need time. You need time to spend in this field. Invasive hemodynamics start कैसे हुआ था? Who is this gentleman? महमूद फ्रॉसमैन. क्या किया था इन्होंने? जैद बताएंगे. जैद. क्या किया था इन्होंने? प्रिया. तो इन्वेजिव कार्डियोलॉजी स्टार्ट कैसे हुई थी? एनी आइडिया? जमीला. डॉक्टर साहिबा. तो यूरिनरी कैथेटर से फर्स्ट राइट हार्ट कैथेटराइजेशन हुई थी. ठीक है ना. डॉक्टर फ्रॉसमैन ने किया था व्हेन हिज बॉस वाज आउट ऑफ टाउन. उन्होंने कैथेटर डाला था, उसके बाद बेसमेंट में फ्लोरोस्कोपी यूनिट लगा हुआ था और वहां जाके देखा था कि वो कैथेटर हार्ट तक फ्लोट किया है या नहीं किया. एंड ही वाज एबल टू रीच राइट एट्रियम अप टिल द राइट एट्रियम विद द यूरिनरी कैथेटर. radial artery से right radial से artery से break here. The radial could be went into the artery I think. The radial side से. अच्छा, इनके दो और कोलीग्स थे, कॉर्नर्ड एंड रिचर्ड्स. उन्होंने फर्स्ट टाइम एक कस्टम मेड बलून टिप कैथेटर बनाया और इस तरह से राइट हार्ट कैथेटराइजेशन स्टार्ट की थी. ठीक है. एंड ये 1956 में इन तीनों को कंबाइंड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन में मिला था. सो बलून टिप कैथेटर्स बने कैसे थे? एनी आइडिया? महमूद, जैद. फ्लो डायरेक्टेड कैथेटर्स. So there were two physicians who were having their leaves on a shore. और उन्होंने देखा कि एक कन्वेंशनल बोट थी जो कि इतनी तेज नहीं जा रही थी, और एक स्पेनेकर सेल थी जो कि बहुत ही फास्ट ट्रेवल कर रही थी. और देयर वाज अ डिफरेंस कि वहां पे एयर या फ्लो डायरेक्टेड हवा से बहुत ज्यादा तेज फ्लोट कर रही थी. तो दैट्स हाउ द आइडिया केम in mind of Swan and Gans to make a flow directed catheter. And flow directed catheter was officially made in 1970. And that's how
right heart catheterization started on bedside as well as in lab. इनमें से एक फिजिशियन था और एक शायद इंजीनियर था। जी. Important point. So coming to the meat, तो राइट हार्ट कैथराइजेशन से हम लोग अचीव क्या करते हैं? हमारा बेसिक एम है टू गेट एन एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन इफ दैट एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन इन्वेजिव मेथड्स, एंड देन गेट अ फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. और फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में आपके पास सैचुरेशन डेटा होता है और हीमोडायनेमिक और प्रेशर डेटा होता है. ठीक है, तो ये दो मेन एम्स होते हैं फॉर एनी राइट हार्ट कैथेटराइजेशन. In today's world, 70 to 80% right heart catheterization is to get an hemodynamic data and not to get an anatomical data, because now we have sophisticated techniques to get anatomical information like advanced echo, CT, and cardiac MRI. So main purpose in any established congenital heart disease program, उनका जो main bulk है right heart catheterization का, वो in order to get hemodynamic data, which is approximately 2/3 of the times. ठीक है. सो राइट हार्ट कैथराइजेशन से पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं. आई विल नॉट टच अपॉन ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स इन डिटेल बिकॉज every line or every pointer needs a separate 1 hour long at least session. So सबसे पहले आप अपना इक्विपमेंट को कैलिब्रेट कर लें प्रॉपरली, देन गेट कंफर्टेबल. खुद भी कंफर्टेबल हो और अपने पेशेंट को भी कंफर्टेबल करें. अगर पेशेंट बहुत एंशियस होगा, बहुत एजिटेटेड होगा, तो यू वोंट गेट एडिक्वेट नंबर्स. Then patient positioning is very important in your cath lab. Then appropriate sedation. Then access points. After getting access point, ट्रांसड्यूसर्स को लेवल कर लें. कैथ लैब में हमेशा चिल्ला रहे होते हैं कि ट्रांसड्यूसर्स को लेवल करें, लेवल करें, लेवल करें इन ऑर्डर टू गेट अप्रोप्रिएट ट्रेसिंग्स. देन जीरोइंग करें ताकि उसमें आपके लाइंस में कोई एयर तो नहीं है. And ideally, patient should be spontaneously breathing in order to get appropriate numbers. And pay special attention to over or underestimate and under dampened tracings because they can mislead the diagnosis in many a times. And the most important point, before going to a cath, know what you will find before you start. So आपके पास अपने माइंड में आंसर पहले होना चाहिए. ठीक है, और अगर आपको वो कैथ लैब में आंसर नहीं मिल रहा, सी इज इट बिकॉज ऑफ इश्यूज विद द प्रोसीजर और रियली वो आंसर नहीं मिल रहा आपको. ठीक है. सो इफ यू डोंट नो what to find in a cath, then many a times you will go here and there and don't get adequate information. ठीक है. सो आंसर आपके जहन में पहले से होना चाहिए. ठीक है. वेस्कुलर एक्सेस की साइट्स क्या हो सकती हैं राइट हार्ट कैथेटराइजेशन में? कन्वेंशनल एक्सरसाइज तो फिमोरल है. देन अपार्ट फ्रॉम फिमोरल यू कैन have radial access, brachial access, or various neck access, or in some of the procedures, you may need to have hepatic access to get to right heart. Okay. Then you need to understand various waveforms of different cardiac chambers. Right atrial की waveform कैसी होगी, ventricle की waveform कैसी होगी, great artery की waveform कैसी होगी, और wedge waveforms कैसी होंगी. So now comes to ventricles. Ventricles में कौन कौन से प्रेशर्स होते हैं महमूद? सर एक स्ट्रोक आ जाता है नहीं, कौन कौन से प्रेशर्स होते हैं वेंट्रिकल्स? सिस्टोलिक होगा प्रेशर वेंट्रिकल का, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है. तो वेंट्रिकल्स में दो प्रेशर्स होंगे, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर. यूजुअली डायस्टोलिक प्रेशर किससे कोरिलेट करता है? एट्रियल मीन प्रेशर से कोरिलेट करता है. ठीक है. सो वेंट्रिकल्स में टू टाइप्स के प्रेशर्स होंगे, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर. ग्रेट आर्टरी में कौन कौन से प्रेशर्स होंगे? अब वेंट्रिकल से आप पहुंच गए एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में. ठीक है, कौन कौन से प्रेशर्स होंगे? सो एट्रियम में मीन प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, वेंट्रिकल में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, और ग्रेट आर्टरीज में जेड. ग्रेट आर्टरीज में सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या क्या चीजें होती हैं? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड मीन. सो तीन थ्री प्रेशर्स आर इंपॉर्टेंट इन ग्रेट आर्टरी: सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और मीन प्रेशर. ठीक है. सो सिस्टोलिक प्रेशर विद will correlate with your ventricular systolic pressure if there is no stenosis, if there is no stenosis. ठीक है. और
ग्रेट आर्टरीज में डायस्टोलिक प्रेशर क्यों ज्यादा होता है? Because of the cause symmetric circulation में pressure मैंने normal body का जो pressure पूरी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेंट कम है। सेमिलुनार वेल्व, कॉम्पिटेंट सेमिलुनार वेल्व, पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वाल्व, ठीक है। सो इसीलिए डायस्टोलिक ग्रेडियंट होता है बिटवीन वेंट्रिकल एंड ग्रेट आर्टरी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेंट सेमिलुनार वाल्व, ठीक है। क्वेश्चन फ्रॉम जैद, ठीक है ना। तुमने तो कोई टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो रिपेयर किया, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो रिपेयर किया, ठीक है। ट्रांस एन्युलर पैच लगाया, ठीक है ना। 6 मंथ के बाद तुम्हारे पास क्लिनिक में आया, ठीक है ना। आरवी प्रेशर था उसका 45/10, पीए प्रेशर है 45/12, और मीन है 25। व्हाट डज दिस मीन्स? परेशान नहीं होना, ठीक है। ये सब काम तुम लोग करते हो। एमन बताएंगे इसके बाद। तो वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर इज सेम एज डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। क्या? Yes, there is significant pulmonary regurgitation, तो diastolic pressure equalize हो गए, ठीक है। So atrium में mean pressure is important, ventricles में systolic and diastolic pressures are important, and great arteries में systolic, diastolic and mean pressures, ठीक है। अब ventricles और great arteries के बाद अब क्या चीज आती है? वेज पल्मोनरी बेड आएगा ना, और वेज प्रेशर आएगा, ठीक है। और फिर आ जाता है वेज प्रेशर और वेज की ट्रेसिंग, अगेन इज मोर और लेस सिमिलर टू एट्रियल ट्रेसिंग, लेकिन थोड़ी सी डैम्पेंड ट्रेसिंग होगी, ठीक है। और अगेन वेज ट्रेसिंग में आप लोग क्या चीज लेते हैं? वेव्स तो वही सेम होंगी, मीन, तो वेज में मीन लेंगे आप प्रेशर, ठीक है। Anyone who is doing or performing right heart catheterization and interpreting right heart catheterization need to know all these waveforms। उन waveforms में कौन कौन सी waves हैं, उनकी significance क्या है, और ताकि you can make appropriate conclusions। When a patient is spontaneously breathing, respiratory effects होते हैं on your waveforms, तो वो क्या हो सकते हैं? respiratory effects क्या होते हैं waveforms पे? एमन। वीनस रिटर्न बढ़ेगा ड्यूरिंग तो waveforms स्टेज या तो एग्जेजरेट होंगी या या फिर लो होंगी, ठीक है ना। तो वो कब कब होती हैं राइट हार्ट कैथ में? इंस्पिरेशन दे शुड हाईली इंक्रीज एग्जैजरेट अगर आपका वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। तो इंस्पिरेशन पे क्या हो रहा होता है महमूद? सर इंस्पिरेशन की जो हार्ट प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मीन्स रिटर्न बढ़ जाएगा। इंट्राथोरेसिक प्रेशर को क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, तभी तो ब्लड सेक इन होगा। जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव होगा तो वेवफॉर्म्स नीचे जाएंगे, ठीक है ना। You should say that spontaneously breathing. But intubated patient or different goals. Intubated patient aspiration to be higher. It should be positive pressure rates. और एक्सपिरेशन में क्या होगा इन स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट? प्रेशर बढ़ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सो इन स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट यूजुअली आप एंड एक्सपिरेटरी नंबर्स लेते हैं इन स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट्स में। अगर वेंटिलेटेड पेशेंट है तो उसमें क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। इंस्पिरेशन पे वेव फॉर्म्स ऊपर चली जाएंगे और एक्सपिरेशन पे वेव फॉर्म्स नीचे चली जाएंगे। सो वेंटिलेटेड पेशेंट पे आप कौन से नंबर्स लेंगे? एंड इंस्पिरेटरी नंबर्स लेते हैं, एंड इंस्पिरेटरी नंबर्स लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने एट्रियल वेवफॉर्म्स आप लोगों को पहले ही बताई थी, ए सी एंड बी, 3 वेवफॉर्म्स एंड एक्स एंड वाई, 2 डिसेंट्स होते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ एन ए सी एंड बी वेव्स आर फॉर्म एंड एक्स एंड वाई डिसेंट्स आर फॉर्म। ये मैंने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में फिर वेव फॉर्म्स को डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो राइट एट्रियम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ए सी एंड वी वेव्स एंड एक्स एंड वाई डिसेंट्स। ये आते कब कब है अगर आप ईसीजी के साथ कोरिलेट करें?
A is a atrial contraction. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सो आपकी जो ईसीजी होगी वो प्रीसीड करेगी, और जो आपके वेव फेम फॉर्म्स होंगे ये उसके बाद आएंगे, आफ्टर द ईसीजी। ठीक है ना। सो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद, एट्रियल इलेक्ट्रिकली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे आती है? पी वेव के बाद आती है ना। सो ए वेव आएगी पी वेव के बाद। ठीक है। और उसके बाद सी वेव, और फिर वी वेव, एंड देन एक्स एंड वाई डिसेंड्स इन बिटवीन। सो राइट एट्रियम में अगेन आप किस तरह से लेते हैं? ए वेव को कैसे डिसाइड करेंगे? पी वेव से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो कहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी दैट इज योर ए वेव। और उसके बाद कब हम सी वेव होगा और फिर वी वेव होगा। सी वेव मैनी अ टाइम्स बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता, और इन बिटवीन देयर विल बी एक्स एंड वाई डिसेंट्स। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट में आप एंड एक्सपिरेटरी नंबर्स लेते हैं फॉर योर राइट हार्ट कैथ कैलकुलेशंस। और वो नंबर्स आप लोग कैसे लेंगे? जो ऊपर वाली ये वेव्स हैं ये, और जो नीचे वाली वेव्स हैं, तो इसमें कहाँ पे जो बिल्कुल बेस लाइन को नीचे टच कर रही है वो वैलीज कहलाती हैं, और उनको आप लोग जस्ट इग्नोर कर दें। और उसके बाद एंड एक्सपिरेटरी में मीन लेंगे, और इसी तरह से राइट वेंट्रिकल में एंड एक्सपिरेटरी लेंगे, सिस्टोलिक एंड एंड डायस्टोलिक। So I think ये कुछ चीजें right, पिछला भी नहीं है. I've seen this mistake being done that people will report three pressures for the right ventricle, like this one, about the toe. The right ventricle is systolic है. एक diastolic जो नीचे तक जा रहा है ना, वो नहीं आप लेते, आप end एंड diastolic लेते हैं, जो ऊपर आ रहा है, square root sign की तरह. और ये important है. सो जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स होते हैं ना, वो आप लोगों को हमेशा प्रीसीडिंग वेव पे लेने होते हैं। ठीक है ना। वेव आफ्टर योर इंडेक्स वेव नहीं लेना होता। ठीक है ना। प्रीसीडिंग वेव पे एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स लेने हैं। ये नुआंसेस स्पेशली कार्डियोलॉजी फेलो के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैथला में जब हीमोडायनेमिक्स हो रहे हैं तो कौन से नंबर्स पिक करने हैं टू पुट इन योर रिपोर्ट्स। ठीक है। Pulmonary artery में we have already discussed there is a diastolic gradient in pulmonary artery, and this is and also in aorta, and this is because of competent semilunar valves. पल्मोनरी आर्टरी में अगेन तीन वेव्स होंगी, तीन प्रेशर्स होंगे, सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड मीन प्रेशर्स। पल्मोनरी आर्टरी की जो वेव फॉर्म होगी ना वो मोर और लेस वेंट्रिकल वेव फॉर्म की तरह से होती है, एक्सेप्ट दैट उसके डिसेंट में एक और बम्प आ रहा होता है। ठीक है। अगेन दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी ट्रेसिंग। देन वेज ट्रेसिंग आपकी मोर और लेस सेम होती है एज राइट और लेफ्ट एट्रियल ट्रेसिंग, बस उसमें सी वेव नहीं होता। और अगेन वेज ट्रेसिंग में मीन प्रेशर इज यूजुअली टेकन। So पीछे ना थोड़ी, so A wave is actually not just a picture वाला. So A wave is actually coinciding with the QRS complex. नहीं, इन लेफ्ट एट्रियम और इन पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इन लेफ्ट साइड। सर जो ए है ना, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये मैकेनिको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिले खिलाफ है. तो आपका जो पी वेव है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द एट्रियम है, तो जो उसका मैकेनिकल इफेक्ट आता है वो डिले के साथ आता है. तो वो जो ए वेव है वो प्रेशर ट्रेसिंग है, जो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिको मैकेनिकल डिले. ओके, तो आपका ए वेव ऑफसेट करता है पी वेव से थोड़ा बहुत, इट्स नॉट एग्जैक्टली ऑफ द पी वेव, बट इट इज एक्चुअली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. अच्छा, नाउ सेचुरेशन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी अ टाइम्स हम सर्जिकल टेबल पे अपने बहुत सारे डिसीजन स्टेप अप या स्टेप डाउन के बेसिस पे ले रहे होते हैं। सो जैद, व्हाट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन? इसके बाद महमूद ऐड करेंगे इसमें। मैं अपने मुड़ के नहीं आगे. दिस इज एन एक्सपीरियंस। ठीक है। ठीक है ना। स्टेप अप ईमन बताएंगी स्टेप अप क्या होता है ईमन? From one chamber to another, there's an increase in oxygen saturation of 10, 10, 10 का step of production. Keep this figure in mind. ठीक है, ये सिंपल लाइन डायग्राम है, वन ऑफ माय फेवरेट। दिस इज हार्ट। ठीक है। एसवीसी, आईवीसी,
आर ए एल ए आर बी एल बी पी ए ये होगा। सो नॉर्मल सेप्टेट हार्ट में क्या होता है, व्हाट इज सेप्टेट हार्ट? इंटेक्ट सेप्टम्स के साथ नॉर्मल हार्ट, सेप्टेट हार्ट, ठीक है। और सेप्टेट हार्ट में सर्कुलेशन कैसी होती है महमूद? इज इट सर्कुलेशन इन सीरीज और सर्कुलेशन इन पैरेलल? रीजन भी बताना होगा, महमूद ने बता पाएंगे तो ज्यादा ऐड करेंगे। सेप्टेट हार्ट है, सेप्टेट हार्ट है तो सर्कुलेशन कैसे होगी? जब राइट साइड फिल होगी फिर लेफ्ट साइड फिल होगी, अगर राइट साइड ही फिल नहीं होगी तो लेफ्ट साइड भी कैसे फिल होगी? तो इधर सर्कुलेशन है सीरीज, नॉर्मल हार्ट में सर्कुलेशन सीरीज होती है। पैरेलल कब होती है सर्कुलेशन ह्यूमन में? इन दोनों कनेक्शन पैदा होने से पहले, ठीक है, फीटस में पैरेलल सर्कुलेशन, बर्थ के बाद circulation series होती है। So what are the normal saturations on right side and left side? Normal saturations क्या होती हैं? 75%, ठीक है, 75%, 75%, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये प्राइमरी वेन्स है आपकी, 95%। यहाँ पे कितना होगा? 95%, 98 नहीं हो सकता ना, स्टेप अप है, कैसे होगा? जितना प्राइमरी वेन्स में होगा उतना ही लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा। ग्रेड आर्टरी में 95। प्रेशर्स हमने अभी डिस्कस किए थे, कितने होते हैं? 3 to 5, ठीक है, 6 to 7। आरबी पे कितने? 25 जितने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 25 से 15 से 10, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा ये बता दिया, यहाँ कितना होगा नॉर्मल? यहाँ पे कितना होगा? 5 to 10 ज्यादा होता है, 110 बाय, ठीक है, 55 से, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर। So what is step up? So term step up is used for right side of heart. Step up कहाँ के लिए यूज होता है? राइट साइड ऑफ हार्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टेप अप है ना, फुली सेचुरेटेड है, यहाँ पे डीसेचुरेटेड ब्लड है, ठीक है। तो राइट साइड ऑफ हार्ट के लिए स्टेप अप का टर्म यूज होगा और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के लिए स्टेप डाउन का टर्म यूज होगा। तो यहाँ पे अगर सेचुरेशन 75 से ज्यादा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, so this is step up in saturation, और यहाँ पे 95 से कम है तो this is step down in saturation। एक बात याद रखनी है, यहाँ पे ब्लड कहाँ से आ रहा है? पल्मोनरी वेन से ना, तो पल्मोनरी वेन से अगर यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो ये पल्मोनरी वेन से ज्यादा सेचुरेटेड नहीं हो सकता, ठीक है, पल्मोनरी वेन से ज्यादा सेचुरेटेड। अगर किसी को लंग डिजीज है, लंग डिजीज और उसको पल्मोनरी वीनस डिसैचुरेशन हो रही है, उसको से 85 है, तो एलए पे कितना होगा? 85 से ज्यादा नहीं हो सकता, वही 85 ही होगा, यहाँ पे 85 होगा, यहाँ पे 85, ठीक है। अब स्टेप अप के रीजंस क्या होते हैं? देयर इज शंटिंग, कहाँ से कहाँ? तो लेफ्ट टू राइट शंटिंग, लेफ्ट टू राइट शंटिंग। सो एट्रियल लेवल पे अगर लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है तो डिफेक्ट यहाँ पे या कुछ और भी हो सकता है, हो सकता है। वेंट्रिकुलर लेवल पे स्टेप अप है, सैचुरेशन ऊपर जा रही है, तो डिफेक्ट यहाँ पे है या कुछ और भी हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। ग्रेड आर्टरी पे डिफेक्ट यहाँ पे है या कुछ और भी हो सकता है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे कितना स्टेप अप इज सिग्निफिकेंट? अच्छा एक चीज और याद रखो, सो दिस इज योर ये प्रॉक्सिमल चेंबर है, डिस्टल चेंबर है? प्रॉक्सिमल, और ये क्या है? डिस्टल है, इसके बाद आ रहा है ना। अब इन दोनों को अगर लें तो ये प्रॉक्सिमल चेंबर है, ये डिस्टल चेंबर, इन दोनों को लें तो ये आपका प्रॉक्सिमल चेंबर है, ये आपका डिस्टल चेंबर है, ठीक है। सो प्रॉक्सिमल चेंबर से डिस्टल चेंबर में अगर एट्रियल लेवल पे 7% का डिफरेंस है इन सैचुरेशन, सो दिस इज सिग्निफिकेंट स्टेप अप, ठीक है। Many papers write between 7 to 9% difference. So this is significant step up. तो यहाँ अगर 75 है और यहाँ पे 79 saturation आ रही है तो this is not significant step up. यहाँ 75 है और यहाँ पे
85 saturation आ गई. This is a significant step up. ठीक है. So ventricular level पे how much step up is important? Usually 5% step up. ठीक है. यहाँ 75 है और यहाँ अगर 80 है तो this is significant step up. Great arterial level पे कितना step up is important? 5 लिखा है. Okay. कोई नहीं बोल रहा. They are so engrossed. So यहाँ 7%, 7 to 9%, यहाँ पे 5%, यहाँ पे 5%. ठीक है. बहुत से पेपर्स में आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा 9%, 6%, 3%. दैट इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. यहाँ पे 3% से ज्यादा हो तो that is यहाँ पे 7 to 9%, 5%, 3 to 6%. ठीक है. अच्छा यहाँ पे अगर इससे कम हो तो ये स्टेप डाउन सैचुरेशन. ठीक है. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. 7% कम हो तो ये significant. अच्छा लेफ्ट साइड पे ना परसेंटेजेस डिफाइंड नहीं है और लेफ्ट साइड क्या ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर ने मिल गया है कि लेफ्ट साइड पे स्टेप अप नहीं हो सकता है और राइट साइड पे स्टेप डाउन डाउन नहीं नहीं हो हो सकता. सकता. तो अगर आपका पीए सैचुरेशन लो आया है एसपीसी के मुकाबले में, उसका रीजन राइट टू लेफ्ट शंट नहीं. समझ रहे हो ना, स्टेप डाउन नहीं हो सकता लेफ्ट साइड राइट साइड, तो कुछ और रीजन वो आप हो सकता. So now take out pencil and paper, all of you. It's really interactive. Doctor who study teachings. So first question from Zad. Zad. अच्छा मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे रीजन नहीं चाहिए. रीजन नहीं चाहिए तो मुझे बताओगे इसमें एबनॉर्मेलिटी क्या है. मैंने यहाँ पे डिफाइन किया. व्हाट इज द एबनॉर्मेलिटी है. आराम से देखो. इशू क्या है इसमें. ये सिर्फ सैचुरेशन डेटा है. अब पेशेंट हु हैज अंडरगॉन राइट हार्ट कैथ. ठीक है. देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी. ठीक है. स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है ना. मैंने वो ओमिट कर दी है. जैसे सैचुरेशन डेटा. पहले ये बताओ सैचुरेशन डेटा में स्टेप अप है. नहीं पहले ये बताओ कि राइट साइड पे एबनॉर्मेलिटी है या लेफ्ट साइड पे. राइट. इशू कहाँ है. राइट साइड. राइट साइड पे क्या हो रहा है. स्टेप अप आ रहे हो. स्टेप अप हो रहा है. कहाँ पे स्टेप अप आ हो रहा रहे है. हो और आर ए में स्टेप अप. अच्छा एक और कॉन्सेप्ट. अगर एक चैम्बर में स्टेप अप है तो उसके सारे के सारे डिस्टल चैम्बर्स में यूजुअली वही सैचुरेशन सिस्टम. ठीक है ना. यूजुअली वही सैचुरेशन. ठीक है. अगर सिंगल लीजन है. अगर सिंगल लीजन. ठीक है. यूजुअली वही सैचुरेशन. तो इसमें राइट साइड पे इशू है. स्टेप अप हो रहा है. एट्रियल लेवल पे स्टेप अप हो रहा है. और ये स्टेप अप सिग्निफिकेंट है या और ये सिग्निफिकेंट क्यों है स्टेप अप. 7 से ज्यादा है. 7 है एटलीस्ट. ठीक है. सो स्टेप अप इन सैचुरेशन एट राइट एट्रियल लेवल. राइट वेंट्रिकल में क्या है. सेम सैचुरेशन. पल्मोनरी आर्टरी में क्या है. सेम सैचुरेशन. लेफ्ट साइड पे कैसी सैचुरेशन. फुली सैचुरेटेड है. सेम सैचुरेशन. ठीक है. सो स्टेप अप इन राइट एट्रियम. आइसोलेटेड स्टेप अप इन राइट एट्रियम. मोस्ट कॉमन लीजन क्या हो सकता है. एट्रियल सेप्टल. ठीक है. मोस्ट कॉमन लीजन क्या हो सकता है. एट्रियल सेप्टल. सो सेकंड क्वेश्चन. मतलब हम डिफरेंट लेवल्स पे देखो यू विल टेक आउट. नहीं देखो प्रैक्टिकली जब आप सैचुरेशंस लेते हैं इन राइट हार्ट कैथ. ठीक है ना. तो 1 to 2 पॉइंट्स का ना डिफरेंस होता है क्योंकि वो सैचुरेशन आप डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे ले रहे हैं. ठीक है. डिफरेंट पॉइंट. इसलिए आइडियली ये लोग कहते हैं कि एसवीसी में जब भी आप सैचुरेशन लें तो हाई एसवीसी और लो एसवीसी सैचुरेशन लें. राइट एट्रियम में भी 3 सैचुरेशन लें. हाई राइट एट्रियम, मिड राइट एट्रियम एंड लो राइट एट्रियम. और फिर उनका एवरेज करके देखेंगे कौन सी सैचुरेशन. लेकिन इतना टाइम होता नहीं है या इतने रिसोर्सेज होते नहीं है. वरना तो आप एक ही कैथ में एटलीस्ट 25-30 सैचुरेशन ले रहे हैं. सो ठीक है. तो दिस इज एट्रियल सेप्टल. ये और भी हो सकता है. एबनॉर्मेलिटी हो सकती है लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे. ठीक है. सो सेकंड मुझे महमूद बताएंगे. जी महमूद पहले देखो इसको.
अगेन मुझे डिफेक्ट नहीं चाहिए. So there is a step up on the right side. So इशू कहाँ है? राइट साइड पे. राइट साइड पे क्या हो रहा है? स्टेप अप हो रहा है. किस लेवल पे स्टेप अप हो रहा है? ये सर वेंट्रिकुलर लेवल पे स्टेप अप हो रहा है. और वही सैचुरेशन आगे कहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है? अगली आर्टरी में. ठीक है, तो इशू कहाँ है? वेंट्रिकुलर लेवल पे. ठीक है ना. लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है? देयर आर नॉर्मल सैचुरेशंस ऑन लेफ्ट साइड. सो देयर इज अ स्टेप अप इन राइट वेंट्रिकल. ठीक है ना. कॉमन पॉलिसी क्या हो सकती है? VST विद लेफ्ट टू राइट शंट. ठीक है, VST विद लेफ्ट टू राइट शंट. थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम हेमंत. Okay. Okay. So concentrate first. So now there is pressure data also. Yeah. Just concentrate. In terms of SATs, there will step up on the right side, So right side पे step up करें. at the level of the right atrium. At the level of right atrium, Right and we assume that left-sided saturations are normal. ठीक है. अच्छा, hemodynamics pressure data में क्या issue है? More or less normal pressure. ठीक है ना? क्या lesion हो सकता है? Yes. AST. So this is also AST. इसमें मैंने आपको pressure data additional दे दिया था. More or less AST में प्रेशर्स नॉर्मल होते हैं या मार्जिनली एलिवेटेड होते हैं. केस 4 जमीला से. अगर जमीला ने आंसर नहीं किया तो जैद बताएंगे. पहले सोच लो अच्छी तरह. लेट मी नो व्हेन यू आर डन. नहीं नहीं, पहले सैचुरेशन पे कंसंट्रेट करो. सो देयर इज इशू ऑन राइट साइड. ठीक है, देयर इज अ स्टेप अप ऑन राइट साइड. ठीक है, और वो कहाँ है स्टेप अप? पल्मोनरी आर्टरी में. मैंने लिख दिया है इस पे. प्रेशर डेटा पे क्या इशू है? प्रेशर जो है वो ठीक है, तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल प्रेशर. अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है प्रेशर डेटा में. क्या मिस्टेक है? कौन बताएगा? गुड हेमन. आरवी प्रेशर. आरवी प्रेशर. हाँ, मैंने कहा सिस्टोलिक और डायस्टोल सिस्टोलिक मोर और लेस सेम होने चाहिए पल्मोनरी आर्टरी से. तो ये जस्ट टाइपो एरर है. टाइपो एरर है. तुम्हारा ब्लड फ्लो कैसे कर. अगर तुम्हारा आरबी प्रेशर 25 है, ये प्रेशर 45 है, तो ब्लड कोई नहीं कर सकेगा. तो नहीं कर सकते. It's not, and this is a very common mistake that you will see for writing in the hemodynamics. Not realizing कि यार भाई, it's physiologically impossible. ठीक है, प्रॉक्सिमल चेंबर का प्रेशर हैज टू बी सेम और मोर. अच्छा, नाउ व्हाट इज द इशू? पैथोलॉजी क्या है? सो स्टेप अप ऑन राइट साइड, पल्मोनरी आर्टरी लेवल पे. तो इशू क्या है? पैथोलॉजी क्या है? गुड. सो दिस पेशेंट हैज पेटेंट आर्टेरियल डक्ट. और भी कुछ हो सकता है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे. ठीक है. सो प्रिया से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. So 15 years old boy presents with a history of unknown stable congenital heart disease. Presents with sudden onset of shortness of breath, palpitations, fatigue, examination पे continuous murmur, right mid-sternal water. सिनेरियो को सोच लो. प्रिया और जैद इसको आंसर करेंगे. This is hemodynamic data. सिनेरियो से ज्यादा आंसर पे पहुंच जाएंगे. पढ़िए सिनेरियो.
किसी और को सिनेरियो और देखना है? क्लियर है? दिस इज द डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन चीतन से होगा. तो डायग्नोसिस मुझे नहीं चाहिए. स्टेप अप हो रहा है. आप मुझे वो बताओ कि देयर इज अ स्टेप अप इन आरवी. और सो गुड. देयर इज स्टेप अप इन स्टेप अप एट आरवी लेवल पे. आरवी में ज्यादा सैचुरेटेड ब्लड आ रहा है, कहीं ना कहीं से वो ज्यादा सैचुरेटेड ब्लड आ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट कहीं ना कहीं से शंट हो रहा है आरवी. अब प्रेशर डेटा देख के बताओ. आरवी प्रेशर एंड पीए प्रेशर दोनों इंक्रीज. आरवी और पीए प्रेशर दोनों इंक्रीज. इंक्रीज है. ठीक है, गुड. अब सिनेरियो को सोचो और मुझे डायग्नोसिस बताओ. तो इसमें मल्टीपल डायग्नोसिस हो सकते हैं. सिनेरियो को सोचो और फिर डायग्नोसिस बताओ. सोचो. वेस्ट. नाउ ठीक है, ये क्लियर है? डेटा क्लियर है? गो बैक टू सिनेरियो. स्टेबल कंजेनिटल हार्ट डिजीज है 15 साल से. अगर वीएसटी था, अगर वीएसटी था तो उसमें तो अब तक आइजनमेंगर हो जाना चाहिए. लेकिन और फिर क्या हुआ सडनली? शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशन, फटीग और कंटिन्यूस मरमर आना शुरू हो गया. राइट स्टैंडर्ड वाटर. जैद बताइए. गुड. और ये कितना ही पेपर में. और जैद और एमन. हाँ, सम इशू विद द एओर्टिक वाल्व. एक्सीलेंट. क्या हो और क्यों और क्या हो सकता है? जैद और एमन. दो ही कंडीशन है ना जो कंटिन्यूस में होगा। तो बोलो नेक्स्ट गुड. किसने बोला? रप्चर्ड साइनस वेल्सलवा इनटू आरवी. एक्सीलेंट. रप्चर्ड साइनस aortic pressure थोड़ा सा that only thing that was wrong in the data was that AR आता है वो AR 40 होना watt है. what सो रप्चर्ड साइनस ऑफ वेल्सलवा. तो क्लिनिकल सिनेरियो को भी अपने माइंड में रखो, वरना तो इट गोज विद सिंपल वीएसटी आल्सो. ठीक है. सो नेक्स्ट कौन? अब खुद हाथ खड़ा करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. जैद. एक्सीलेंट. क्वेश्चन 6. 32 years old male, short history of dyspnea, fatigue, palpitation. Examination पे continuous murmur, right upper and mid sternal border. Scenario is clear. This is the data. Again diagnosis नहीं चाहिए. tip of the right side. So right side पे step up है. Level क्या है step up का? Atrial level step up है. Atrial. अच्छा, pressure data में क्या issue है? एक error है, बाकी issues है. आर्मी और फिर शुरू बढ़ेंगे थोड़े से. और ये किसने बोला? गुड. सो राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ेगा. और स्टेप अप कहाँ पे है? वो भी राइट एट्रियम में आ रहा है. ठीक है, तो राइट एट्रियम में लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है कहीं ना कहीं से. और राइट एट्रियल प्रेशर भी आपके बढ़े हुए. देन आरवी और पीए प्रेशर. डायग्नोसिस. आप सिनेरियो को दोबारा से पढ़ो. पहले का प्रेशर नहीं Yeah, so we are there with LV dysfunction or आरए में स्टेप अप कैसे हो गया? हाँ LV dysfunction के LVD भी बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है शिफ्ट पेंशन पहले तो बताओ ना सेप्टल लीजन है कि नहीं इंडेक्स पे सम लेफ्ट टू राइट शंट है.
जो कि आरए के प्रेशर भी बढ़ा रहा है, आरए की सैचुरेशन भी बढ़ा रहा है। अब इस सिनेरियो को पढ़ो। व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो दो लीजन है इसमें, एक तो शंटिंग लीजन राइट, ठीक है, और दूसरा प्रेशर लीजन भी है। प्रेशर कहाँ से आए? यहाँ पे एक करेक्शन करूँ, 120/45/80 कह दो। इशू क्या है? हाँ सही कहा है, पर शायद ने सही कहा, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। तुम्हारा 40 का डायस्टोलिक डिओटिक प्रेशर हो, स्क्वेयर यार है जैसे एल भी डायलेट हुआ है, एल भी बड़ा हुआ है, तो फिर एल पड़ेंगे। तो अगर एएसडी है तो ASD है, फिर सिनेरियो से क्या चीज फिट हो रही है? क्लिनिकल सिनेरियो। सडन हुआ है। Is it SOVA rupture into RA? Somebody on the chat had written. SOVA rupture into RA. Yes. Ruptured sinus of L7 to right atrium. correct. So this is again ruptured sinus of L7 to right atrium. पर तुम्हारी ये सोच भी सही थी है, was very good about the increasing अगर actually left right बढ़ जाएगा, it's a full effect के पास। This is for Priya. Yes, 7. Change of flavor. स्टेप डाउन है एओर्टा में। So step down on left side है, ठीक है, step down on left side. आगे प्रेशर इंक्रीज है। So step down left side पे, ठीक है ना, इसका मतलब है right to left shunt at some level, ठीक है ना, keep it simple. Now concentrate on pressure data. आगे प्रेशर इंक्रीज है बट पीए प्रेशर सब नॉर्मल है, तो कोई राइट आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। Excellent. There is right outflow tract obstruction with systemic desaturation. What is the most common disease? Tetralogy. Excellent. So this is tetralogy of fellow. Correct, Ayman? सही सही है? डाउट है? क्या डाउट है? आपको राइट एट थोड़ा बहुत राइट एट बहुत रिस्ट्रिक्टिव टॉप है। ठीक। दिस इज फॉर जमीला। थोड़ा सा क्लू है इसमें। पोस्ट ऑपरेटिव साइनोटिक चाइल्ड वो इज स्टिल साइनोटिक। step down and then और साइनोटिक हेल्प करना। देखो स्टेप अप है, कहाँ पे स्टेप अप है? ये में और राइट साइड पे स्टेप अप है, लेफ्ट साइड पे स्टेप डाउन है, और वो दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, यानी आपस में किसी ना किसी तरह मिले हुए भी हैं। अब प्रेशर डेटा पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। डॉक्टर तारिक बताएंगे वरना। chase movies and the right and left ventricular pressure is more or less same. 870 or 18. ठीक है, Rankas continuous. और पीए प्रेशर में क्या हो रहा है? थिंक कॉमन लीजन। ये pressure है कुछ नहीं। पोस्ट ऑपरेटिव एक पोस्ट ऑपरेटिव चाइल्ड है जो कि स्टिल साइनोटिक है। So step up in PA, step down in systemic saturation. Systemic saturation और PA saturation more or less same है, ठीक है। अब प्रेशर डेटा पे जाओ, तो राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर आर मोर और लेस सेम एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, तो उन दोनों के दरमियान कोई बड़ा शंट लीजन होगा, एक VST हो सकता है, ठीक है। पल्मोनरी प्रेशर आर लेस एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकुलर, तो स्टेनोटिक लीजन है वहां पे, सो VST है, PS है, ठीक है वहां पे।
और यहाँ पे ये क्या बता रहा है, क्लू यहाँ पे VSTPS, और यहाँ पे क्या है, सिस्टमिक डीसैचुरेशन, साइनोटिक हार्ट डिजीज था इसको। क्या साइनोटिक हार्ट डिजीज हो सकता है VSTPS के साथ? से बताते रहते अभी तो बताया था तुम लोगों ने, टेट्रोलॉजी। लेकिन अब PA की सैचुरेशन ज्यादा हो गई है, सेम है। बीटी शंट। एक्सेलेंट, सो इसको बीटी शंट दिया केस। ठीक है। बीटी शंट में ब्लड प्रेशर इससे बड़े नहीं होंगे। हाँ थोड़े से बड़े हो सकते हैं, ठीक है 45। मोस्ट ऑफ का इसलिए शंट के डिपेंड करता है कि शंट किस साइज का दिया हो। अच्छा हाँ यस दैट आल्सो डिपेंड्स। सो एप्रोप्रिएट साइज। हाँ बोलो, क्या कह रहे आरबीएफ वैल्यू के प्रेशर के हो? बोलो बोलो बोलो, स्पीक अप। अगर हमने शंट लिया है तो फिर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो है ना, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो में BST इज ऑलवेज ऑलवेज। राइट कॉलेज में तो BST क्या होता है उसको? दोनों में नॉन रिस्ट्रिक्टिव BST होता है बाय डिफॉल्ट, यूजली नॉन रिस्ट्रिक्टिव BST होता है। तो जो लेफ्ट साइडेड प्रेशर होते हैं वही राइट वेंट्रिकल के प्रेशर। ये कौन करेगा? हाँ महमूद, गुड सिनेरियो। फाइव ईयर्स ओल्ड विद साइनोसिस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सैट्स 85 to 90% है, और वाइट वाइड फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड। क्लियर? सैट्स कितनी है? कम कम सैट्स। इसको अगर कोई एक जनरल डायग्नोसिस देना हो तो क्या डायग्नोसिस दोगे? एचडी डाइजेनमेंगर और यस यस ASD में आइजनमेंगर देखिए तुमने अभी? मैंने ये 5 साल के ऊपर थोड़ी देखे। सो 5 years। 5 साल से उन्हें चार्जेस तो डायग्नोसिस क्या दोगे? एक ब्लैंकेट डायग्नोसिस क्या दोगे? तो साइनोटिक ASD की फाइंडिंग है ये, साइनोटिक ASD। अब साइनोटिक ASD को ध्यान में रखो, तो दिस इज योर डेटा। यस मेमू, साइनोटिक ASD की क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। सिस्टमिक डीसैचुरेशन है, 5 साल का हो गया। ये प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो साइनोटिक ईएसडी विदाउट आइसन, तो कौन सा क्या होता है? गुड। हो गए हो। या ये तो टैग की ज्यादा बताओ। कौन भी हो रहे सो TAPVR लेवल क्या है? TAPVR का बस कहाँ पे खुल रही है सारी की सारी वेन्स? ठीक है, SVC में तो नहीं खुल रही? क्यों? के अंदर स्टेप अप स्टेप, गुड, स्टेप अप नहीं। अगर SVC में स्टेप अप एक्सपेक्ट करते और वो किस लेवल पे होना चाहिए था? हाई SVC में, मिड SVC में, लो लो SVC? एसपीसी यूजुअली मिड या लो SVC। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? सो कार्डियक वैरायटी ऑफ TAPVR के स्टेप। कौन देर में मतलब स्ट्रिप डाउन है ये होगा So atrial लेवल पे सम स्टेप अप है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, प्रोबेबली सम स्टेप अप है। वेंट्रिकल लेवल पे थोड़ा स्टेप अप है। पल्मोनरी आर्टरी लेवल पे, क्या वेंट्रिकल लेवल पे स्टेप अप करेंगे हम? आपको कंपेयर करना हो, हाँ थोड़ा सा।
पल्मोनरी आर्टरी लेवल पे सेम है, हाँ एओर्टा में भी स्टेप डाउन है। प्रेशर्स देखो, प्रेशर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। इसका कोई केस मैंने नहीं किया। नहीं, 3 weeks ओल्ड बेबी है, 3 weeks ओल्ड बेबी। डिफेंड करो। एओर्टा का प्रेशर कम है और सेम है जैसा पल्मोनरी आर्टरी का होता है। के प्रेशर्स भी बढ़े हुए हैं, सैट्स सॉरी एओर्टा की सैट्स कम है, पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर्स बढ़े हैं। ये 3 weeks का हो चुका है, 4 weeks का हो गया फॉर एमन। PhD भी है उसका। कौन सा रीजन तुम्हारे दोनों वेंट्रिकल्स को इक्वलाइज करते हैं प्रश्न? So this is this is this is this is truncus arteriosus। टोटल मिक्सिंग रीजन है, टोटल मिक्सिंग रीजन है ट्रंकस आर्टरियोsus। सैचुरेशन भी हर जगह सेम है, प्रेशर्स भी हर जगह सेम है। इम्पोर्टेंस वाज अगर एज नहीं बता देना यू वुड हैव थॉट अबाउट आइजनमेंगर जैसे पिक्चर। कौन बताएगा? केस 10, केस 11। चेंज ऑफ फ्लेवर है यहाँ पे भी। ये ब्लड गैस है। तो मिक्स वीनस इज 60%, पल्मोनरी आर्टरी 62%। ठीक है ना? सिस्टमिक साइड पे नॉर्मल सैचुरेशन है, थोड़ा सा शायद लो कार्डियक आउटपुट है, सम लो कार्डियक आउटपुट। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेशर डेटा। थोड़े से पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स बढ़े हुए हैं, ठीक है ना? वेज बढ़ा हुआ है, एलवीईडी 12 है। इसने बताने हाथ खड़ा करो पहले। मैंने some change of flavor। सो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, थोड़ा लो कार्डियक आउटपुट है। इशू क्या है मरीज को? बचपन में इसका गला बहुत खराब होता था। which valve? MS और एमएस क्यों है ये? पल्मोनरी पहले प्रेशर बढ़ी हुई है इसलिए मेरे पल्मोनरी वेज बैक प्रेशर। वेज टू ईडीपी ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है? तो वेज टू ईडीपी ग्रेडियंट इसका ठीक है ना? प्रेशर को कम ना हो। नॉर्मल सो लास्ट सिनेरियो कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। यस। एज 5 weeks है, 5 weeks ओल्ड यूनिट। जिसको डायग्नोसिस आ जाना मुझे अभी बोले नहीं, जस्ट कीप इन योर माइंड, कीप क्वाइट। पहले मुझे इशू बताओगे क्या? Step up in pulmonary artery. Step down, स्टेप डाउन In pressures में RV and PA pressures both are increased और LV का कम है। नहीं कम। एओर्टा का बड़ा एओर्टा का नाम क्या हो गया? प्लास्टिक सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा।
नहीं, ये है, ये ट्रू डेटा है, सही। ट्रू डेटा है। क्यों टीजे है? I didn't think of it. And आप दीजिए आंसर अरे यार, ये of the right chat. हैं? कोई कह रहा है टीजे, चलो आगे देखते हैं क्या है ये। कितने लोग कह रहे हैं टीजे, कितने लोग कह रहे हैं टीजे, और कितने लोग कह रहे हैं टीजे नहीं। जो टीजे कह रहे हैं वो हाथ खड़ा करें, जो कह रहे हैं I'm टीजे नहीं है। typing the chat window. Okay, और जो कह रहे हैं टीजे नहीं है, रेज योर हैंड। तो सारी नर्सेस कह रही है ये टीजे नहीं है। ठीक है, तो क्या है ये? तो Eleven of एक them. रन, 16. एक रन। क्या है, तो क्या हुआ वो? टीजे, so that was TGA, transposition of greater arteries. So this section was a primer, ठीक है। हीमोडायनामिक डेटा तो एक प्रोबेबली सीरीज होनी चाहिए लेक्चर्स की या सेशंस की, जिसमें आप हर एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करें। एक्साइटिंग फील्ड है। अगेन, नो योर शिट, अदरवाइज यू आर अ शिट। एंड इट्स अ टीम स्पोर्ट, बट देयर आर रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है। Get anatomical as well as physiological data, and correct interpretation is very important, and always have answer in your mind before going to the cath lab. Thank you everyone.